This is the exercise of unit number 4. The name of the unit is From Mother with Love. So, these are the grammar and vocabulary exercises. The first exercise is look at the meaning of the following emotive words in dictionary. Find their antonyms and in an authentic thesaurus and write down the correct word for the emotion expressed in each sentence. तो आपने दो काम करने हैं. Number one, you need to write the meaning of it, and then you need to give an antonym. Antonym is the opposite of the word. ठीक है. तो थिसॉरस में बेसिकली सिनोनिम्स होते हैं, ये कि सिंगल वर्ड मीनिंग होता है किसी चीज़ का. सिनोनिम में और मीनिंग में फ़र्क ये है कि स्नॉबिश का जो मीनिंग है, इट कैन बी इन अ सेंटेंस टाइप, अ पर्सन हु फील्स सुपीरियर टू अदर पीपल, अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू टॉक टू पीपल हु आर नॉट अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड. लेकिन जो सिनोनिम होता है वो एक वर्ड सब्सटीट्यूट होता है. फॉर एग्जांपल, वी कैन कॉल स्नॉबिश पॉम्पस ऑल्सो. So that would be a synonym. And similarly, antonym can be a single word substitution but opposite. So पहले हम words को individually देख लेते हैं. The first is lazy. It's a quite easy word. इसका जो synonym है वो है lethargic. Lethargic means somebody who does not want to be active. And the opposite of it would be diligent या active. दोनों हो सकते हैं. Then is vengeful. Vengeful revenge से निकला है. जो उसका रूट वर्ड है वो वेंज है, और रिवेंज भी उसी से बना. वेंजफुल इज़ अ पर्सन हु वांट्स टू टेक रिवेंज, हु इज़ नॉट अ वेरी फॉरगिविंग पर्सन. सो उसका जो सिनोनिम होगा, सेम मीनिंग, दैट वुड बी हॉस्टाइल, एंड द ऑपोजिट ऑफ वेंजफुल वुड बी फॉरगिविंग, समबडी हु फॉरगिव्स. The next is vain. Vain is basically a person who is very conceited about his own qualities, somebody who loves himself basically. So he's always self praising. So that is called vanity. So vain can be boastful. The same meaning would be boastful, but the opposite would be modest. Next is snobbish. Snobbish again, the synonym would be pompous, Pompous. Pompous means somebody who is too full of his superiority, the feelings of superiority. He thinks that, he is the best among all, and he looks down upon people who are lesser than him. And the opposite would be somebody who is humble. So, humble is the opposite. Next line, sympathetic. It's again an easy word. So, sympathetic is caring, feeling person. So, caring would be a right synonym. The opposite would be insensitive. Next is arrogant. Arrogant means somebody who's very smug about himself, somebody who doesn't listen to anyone, and he believes that whatever he is thinking is the best answer. And the opposite is timid. Timid is somebody who does not even, speak up for his own good. Next is ambitious. Ambitious is aspiring. When you are trying to do something, you want to do something, you have high goals. So that is called being ambitious. And the opposite of it would be irresolute. Irresolute is when you do not have any kind of resolution, when you do not want to do anything in your life, you do not have any aim in your life. So that is called irresolute. द लास्ट वन इज़ प्राउड. अच्छा, प्राउड जो है ना, उसके दोनों दोनों कॉन्टेशन हो सकते हैं, डिपेंड के यूज़ किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है. कि अगर आप किसी अच्छी चीज़ पे यू आर फीलिंग गुड, सो इवन दैट इज़ कॉल्ड बीइंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बीइंग प्राउड ऑफ योर सन, और बीइंग प्राउड ऑफ योर स्टूडेंट्स बिकॉज उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा आया. बट इट कैन बी टेकन इन अ नेगेटिव वे एज वेल, बिकॉज इफ़ यू आर too much thinking about yourself and you think that nobody is better than you, even then can be called pride या being proud of himself. So अगर इसको positive में देखें तो proud is honored, ठीक है, somebody who is dignified. And the opposite is meek. Somebody who is not at all proud of himself is a meek person. MEEK, meek. अच्छा, जो आपके यहाँ context है, there is no house in the town better than me. So आपका ख्याल है कि आप तो बेहतरीन है ना सब में, यानी और सुपरलेटिव ना. तो दिस इज़ अ स्नॉबिश एटीट्यूड. स्नॉबिश मीन्स कि अपने अलावा आप हर किसी को आप समझते हैं कि nobody is good enough. I can't stand talking to the poor people. So this is obviously rudeness is also involved. तो arrogant जो behavior होता है उसमें rudeness भी involve होती है कि you are not only very proud of yourself in a negative way, but you are also rude as well. कि कुछ लोग होते हैं ना, वो snobbish होते हैं लेकिन वो किसी को कहते नहीं है कुछ. वो खुद समझते रहते हैं कि नहीं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है. लेकिन जो एरोगेंट लोग होते हैं वो ना सिर्फ स्नॉबिश होते हैं बल्कि उसके साथ साथ वो रूड भी होते हैं. सो आई कांट स्टैंड टॉकिंग टू पुअर पीपल वुड बी लाइक एरोगेंट. माई सन डिड रियली वेल इन एग्जाम, obviously it's a moment of pride, तो वो होगा कि the father is feeling very proud. Oh, my hair looks wonderful today. So when you are self obsessed with your looks all the time, तो vanity में आता है ना कि अपनी तारीफ़ें खुद ही किए जाना, तो उसको वेन कहते हैं कि you are being very vain. Vain means that
you are always self praising yourself. You think that there is nobody who is better than you in looks etc. जो वेन है ना, वो आपके फिजिकल एट्रीब्यूट से ज़्यादा होता है कि यू थिंक दैट यू हैव लवली हेयर एंड यू थिंक दैट यू हैव द बेस्ट स्किन एंड यू थिंक दैट यू आर वेरी ब्यूटिफुल. सो वैनिटी, और उसको ज़्यादातर एट्रीब्यूट भी ख़वातीन के साथ करते हैं कि फीमेल्स आर मोर वेन देन men because they always think that they are very pretty. I just don't want to get out of the bed today. Obviously, this is being lazy. I will own my own business within 5 years. So, this is called being ambitious when you are aiming something high for the future. Sajda, I understand what you are going through. So, this is being sympathetic. ठीक है, और sympathetic में और empathetic होने में फ़र्क है. Sympathy होता है कि आप खुद उसमें से गुजर नहीं रहे, लेकिन यू से अदर पीपल के नो आई कैन सिंपथाइज विद यू, कि हालांकि मेरे साथ तो इस तरह नहीं हुआ लेकिन आई फील सॉरी फॉर यू. और एम्पथी है, EMPATHY. एम्पथी इज़ व्हेन यू एक्चुअली फील द सेम योर सेल्फ ऑल्सो. For example, if somebody has lost a mother and you have also lost the mother, so you can say, I can totally empathize with you. Means that I can understand what you're feeling at this time because I have gone through the same. So empathy is being in somebody's shoes, actually feeling whatever the other person is feeling. Then the last one, I'll never forget what she said to me. This is being vengeful, that you don't forget easily and you want to take revenge. So this is somebody who is vengeful. These are emotive words. Emotive mean that these are related to your emotions, so they are very abstract. And there are some words which are hardly different from one another, meaning snobbish, arrogant, और जो वेन है ना उसमें 19-20 का ही फ़र्क है उनके मीनिंग में. बस एरोगेंस में ये है कि रूडनेस भी शामिल हो जाती है. स्नॉबिशनेस कैन बी जस्ट योर एटीट्यूड. ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बान से कुछ कहें, यू कैन शो इट विद योर एक्शंस ऑल्सो. वैनिटी इज़ रिलेटेड टू योर परसेप्शन अबाउट योर सेल्फ, अपने आप के बारे में. व्हेन यू हैव रियली हाई आइडियाज़ एंड नोबडी इज़ लाइक यू, दैट इज़ बीइंग वेन. और ज़्यादातर वो आपके फिजिकल फीचर्स से रिलेटेड होती है फीलिंग. नेक्स्ट वन वी कम टू रिलेटिव प्रोनाउंस. लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं. इफ़ यू रिमेंबर लास्ट चैप्टर, उसमें हमने प्रोनाउंस की एक और टाइप की थी, पोसेसिव प्रोनाउंस एंड पोसेसिव डिटर्मिनर्स किए थे. तो आज हम कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉजेस. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ saying something, we actually use relative clauses and use these words to mention them. For example, Lord Thompson, who is 76, comma, has just retired. So who is 76 is your relative clause, एक additional information है. तो उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए आप who, which, that लगाते हैं. who ज़्यादातर you use it for people, which you use for place और thing also, और that के साथ भी यही है कि वो ज़्यादातर थिंग्स के साथ लगता है. या इट कैन बी यूज्ड विद पीपल एज वेल इफ़ यू आर ट्राइंग टू use some new information with them. Marie Curie is the woman that discovered radium. अच्छा, इसमें क्योंकि क्लॉज बाद में आ गया तो दैट लगेगा, लेकिन अगर आप बीच में इसको डालेंगे, मैरी क्यूरी कॉमा हु डिस्कवर्ड रेडियम कॉमा इज दिस वुमन, सो यू नो दैट वुड बी लाइक इंसर्टिंग इट इन द मिडल. तो आगे पीछे आपके कॉमाज लगेंगे क्लॉज के. बट व्हेन यू आर यूजिंग इट टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस टुगेदर, तो फिर इसके साथ कॉमास नहीं लगेंगे. जैसे ये है ना, लॉर्ड थॉमसन हु इज़ 76 हैज़ जस्ट रिटायर्ड. इवन अगर आप बीच में से ये क्लॉज निकाल भी देते हैं ना, हु इज़ 76, तो आपका सेंटेंस पूरा रहता है. लॉर्ड थॉमसन हैज़ जस्ट रिटायर्ड. तो हु इज़ 76 इज़ लाइक एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉमास के बीच में आती है. बट इफ़ यू लुक एट द अदर सेंटेंस, दिस इज़ द हाउस विच जैक बिल्ट. सो अगर इसमें से आप ये निकाल दें दूसरा वाला क्लॉज, तो द इन्फॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट. दिस इज़ द हाउस, ओके, सो व्हाट. या आप दूसरा वाला कह रहे हैं विच जैक बिल्ट, सो इवन दैट डज नॉट हैव फुल मीनिंग. सो व्हेन इट कम्स एट अ क्लॉज इन द मिडल विच इज़ गिविंग यू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, देन इट वुड कम इन कॉमास. सिंगल कॉमास दोनों तरफ लगेंगे और बीच में ये क्लॉज आएगा. अच्छा, इसके दो तरीके हैं रिलेटिव क्लॉज को लगाने के. We can use relative clause to make clear which person or thing we are talking about. Marie Curie is a woman who discovered radium. This is the house which Jack built. So एक तो तरीका ये है कि आप उनको joining के लिए यूज़ करें इन words को, तो फिर आप commas नहीं लगाएंगे. The other is कि when you use relative clause to give more information about a person or a thing or a situation, तो फिर आप उसको बीच में लगाएंगे. Lord Thompson, who is 76, has just retired. We had fish and chips, which I always enjoy. I met Rebecca in the town yesterday, which was a nice surprise. So, अगर आप इन clauses को निकाल भी दें, even then your information is complete.
बट अदर देन दैट आपको कॉमास में लेना पड़ेगा. अच्छा जी, गोइंग बैक टू योर एक्सरसाइज. अब है हु, विच और हुज. ये आसान है. हु आप लगाएंगे पर्सन के साथ, विच आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट के साथ, और हुज लगाएंगे जब आपने किसी की पोजेशन शो करनी हो, जिसका. फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस देख लें. आई टॉक टू द गर्ल हुज कार हैड ब्रोकन डाउन इन फ्रंट ऑफ द शॉप. जिसकी गाड़ी ब्रेक डाउन कर गई. तो आपने पोजेशन शो करनी है. अब इसी जगह हु और विच आप नहीं लगा सकते क्योंकि उससे मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. आई टॉक टू द गर्ल हु कार ब्रोक डाउन, विच कार ब्रोक डाउन, सो दैट वुड फील रॉन्ग. जिसकी गाड़ी, आपने पोजेशन शो करनी है तो हुज कार आएगा. अच्छा, नेक्स्ट में देखें, बीच में एक क्लॉज अलहदा से लगा हुआ है, इसीलिए उसके आगे पीछे आपको कॉमा नजर आ रहा है. मिस्टर निज़ाम हु इज़ अ टैक्सी ड्राइवर लिव्स ऑन द कॉर्नर. अगर आप बीच में से ये क्लॉज निकाल भी दें तो सेंटेंस कंप्लीट है. मिस्टर निज़ाम लिव्स ऑन द कॉर्नर. सो ये जो बीच में क्लॉज है ये रिलेटिव क्लॉज है बिकॉज इट इज़ गिविंग यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सब्जेक्ट. तो हु लगेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट a person here. I live in a house in Hayatabad, which is in Peshawar. So you're talking about a city, so you're going to use which. This is the girl who has come from Spain. So थोड़ा सा बीच में करेक्शन होने वाली थी तो मैं हैज़ लगाया क्योंकि this is the girl who comes from Spain is not right. This is the girl who has come from Spain. So who लगाएंगे because you're talking about a person. That is Abrar, the boy who had just arrived at the airport. So again we are talking about a person, तो उसमें आप who लगाएंगे. Then continuing with the rest of the exercise. Thank you very much for your email, which was very interesting. By the way, which और that आप interchangeably लगा सकते हैं. that की यहाँ ऑप्शन नहीं दी गई थी, लेकिन that भी आप लगा सकते हैं. जैसे इस सेंटेंस में आप thank you very much for your email, that was very interesting. So आप that भी लगा सकते हैं. The man whose father is a professor forgot his umbrella. So whose father में आपने possession show करना है कि किसका father, तो आप whose लगाएंगे. The children who shouted in the street are not from our school. Again, we are talking about people to who. The car whose driver is a young man is from Ireland. So यहाँ भी हमने possession show करनी थी कि whose car, who are we talking about? The car whose driver is a young man is from Ireland. What did you do with the money which your mother lent you? Again, going back के यहाँ that भी आ सकता है. What did you do with the money that your mother lent you? तो अगर that की option होती जो हमारे पास नहीं है, हमें सिर्फ उन्होंने 3 चॉइसेस दी हैं कि विच लगाएं, हुज लगाएं या हु लगाएं. सो उसी वजह से हम इधर विच लगा रहे हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद मनी. थिंग है, इट्स एन ऑब्जेक्ट. बट अदरवाइज दैट कुड हैव बीन यूज्ड ईजिली एज वेल विदाउट चेंजिंग द मीनिंग. नेक्स्ट टॉपिक है जी आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट का मतलब होता है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता ना हो. द वर्ड इनडेफिनिट इन इट सेल्फ इज़ अ डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोनाउन. कि अक्सर हम जब प्रोनाउन लगाते हैं तो हमें पता होता है कि किसके लिए लग रहा है. जैसे शी है तो इट मीन्स अ गर्ल, ही है तो इट मीन्स अ बॉय, दे है तो इट मीन्स दैट प्लूरल है, थर्ड पर्सन. वी है तो इसका मतलब है कि इट इज़ फर्स्ट पर्सन प्लूरल. ठीक है. यू है तो इसका मतलब है सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है. इट है तो हमारे जहन में आता है कि वी माइट बी टॉकिंग अबाउट अ थिंग और एन एनिमल. बट जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उसमें कोई क्लियर नहीं होता कि हु इज़ बेसिकली द सब्जेक्ट. So if you look at the bottom of the page, I have written the definition. An indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing, or amount. It is vague. Vague means not clear. And it is not definite. That is why it is called an indefinite pronoun. क्योंकि पता ही नहीं है कि आपका जो basic noun है वो क्या है. और इसकी एग्जांपल्स हैं all. जैसे हम कहते हैं ना, all the people have done it. All of them have done it. So you do not know how many exactly. Another, any, anyone, anybody, anything, each, everyone, everybody, everything, few, many, nobody, none, one, several, some, somebody, someone. तो जब हम कहते हैं ना somebody opened the door, so we do not know whether it was a girl or a boy or it was a child. कौन था, indefinite pronoun है, हमें नहीं पता. Same happens with, everybody finished their work in time. So we do not know what everybody was. Are we talking about girls? Are we talking about boys? Are we talking about students हैं, कौन हैं, क्योंकि everybody encompasses everything. So same with anyone has a sharpener. So when you ask that, you are not specifying who you are actually asking for, whether you are asking the first person or the second person or the third person कौन है, तो वो indefinite है. So आपने सिर्फ यहाँ जो है अंडरलाइन करना है. so that is not very difficult to do. And then use these pronoun in your own sentences also. ठीक है. तो वो भी थोड़ा सा आसान काम ही है कि उतनी लंबी एक्सरसाइज नहीं थी इस चैप्टर की.
एवरीबडी enjoys क्रिकेट मैचेस, एवरीबडी। और देख लें आप सारे मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। उन्होंने ऊपर लिख दिया था देयर इज़ अ टोटल ऑफ 10 इंडेफिनिट प्रोनाउंस। तो आपका जो सेंटेंस नंबर 3 है उसमें 2 हैं। वन स्टूडेंट रेड वाइल द अदर्स लिसन टू हिम केयरफुली। सो वन एंड अदर, they are indefinite pronoun. The secret was known by few नहीं पता 4 5 10 कितने। नो द सीक्रेट वॉज नोन बाय मैनी, मैनी का भी नहीं पता कि 4 5 10 20 कितने लोगों को पता था। कैलकुलस इज़ टू हार्ड फॉर सम, सो सम, जैसे अगर आपका 45 की क्लास है और अगर आप कहते हैं कि नो कैलकुलस इज़ टू हार्ड फॉर सम, सो सम इज़ इनडेफिनिट बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ मेनी पीपल यू आर टॉकिंग अबाउट। Surely you recognize somebody. Again, somebody is not definite ke whether we are talking about a man or a woman or a child. Is there anything that I can do? Anything. I mean, it's है indefinite कि आपको नहीं पता कि specifically what you are actually talking about. So these are indefinite pronouns. Please साथ साथ इन पे कोई register अपना बना ले और उसमें ना ये जो जो आपके ग्रामर के टॉपिक्स आते जा रहे हैं, प्लीज़ राइट देम डाउन समवेयर विद एग्जांपल्स। सो उससे होगा ये कि एट द एंड ऑफ सेमेस्टर या जो भी आपका टर्म होगा, आपके ये जो टॉपिक्स हैं ना ये कहीं इकट्ठे आ जाएंगे, बजाय ये कि आप पूरी बुक को उल्टा रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज। बट आई वुड से कि ख़ास तौर पे जो ग्रामर टॉपिक्स हैं ना, जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, इससे पहले भी आपने पिछले चैप्टर में भी जो किए हैं, जो आपके ग्रामर टॉपिक्स हैं, प्लीज़ पुट देम समवेयर। जैसे पर्सनल प्रोनाउंस थे, possessive determiners थे, so you write them down somewhere and write like the definition and a little example with it. So at the end of like 4 or 5 chapters आपकी ग्रामर जमा होनी शुरू हो जाएगी उसमें, and it would be very easy for you to revise them. क्योंकि अगर आपने अपना पेपर पैटर्न देखा है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है वो प्राइमरीली आपका ग्रामर से ही पिक होता है, कि क्लॉजेज आते हैं उसमें और फ्रेजेज आते हैं, एंड देन ऑल दिस काइंड ऑफ अ ग्रामर के प्रोनाउन और उसकी टाइप्स और कंजंक्शंस और उसकी टाइप्स और compound words, and there's a long list. So this is one way of keeping everything in a nice tidy manner, that at the end of the year, और इस साल तो जैसा चल रहा है मसला, उससे ये है कि आपका टेम्पो ही नहीं प्रॉपर बनता कि आप प्रॉपर किसी अकेडमी में जा सकें या घर पे प्रॉपर उसको तवज्जो दे सकें, कॉलेजेस वैसे बंद हैं, सो यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी, and this is one of the very good study skills that you can follow, that you make a register and then you make portions within that एक जगह आप comprehension कर रहे हैं, एक जगह जो है आप समरीज वगैरह पोएम्स की लिखना शुरू कर दें इकट्ठी, फिर एक जगह पे आप ये ग्रामर पोर्शन अपना जो है लिखना शुरू कर दें, राइट इट डाउन। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है। एज़ फार एज मेमोरी इज़ कंसर्न, जो आप देख के पढ़ते हैं ना, सिर्फ पढ़ते हैं, वो आपको बहुत जल्दी भूल जाता है, बट इफ़ यू राइट इट डाउन विद योर ओन हैंड, दैट हैज़ अ लॉन्गर मेमोरी, आपको भूलता नहीं है, जबकि आप कभी लिखते भी हैं तो पेज आपके सामने आ जाता है जहाँ आपने लिखा होता है। सो प्लीज़ डू दैट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप। ठीक है, मैं ओपन कर दूँगी ग्रुप कल के लिए, लेकिन प्लीज़ फालतू किस्म के मैसेजेस ना करें, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता। आई वॉन्ट टू कीप इट ओपन, बट द थिंग इसकी फिर अटेंडेंस आनी शुरू हो जाती है, आई डोंट नो वाई, तो आई एम नॉट आस्किंग फॉर अटेंडेंस एट दिस टाइम। So just go through the video, and if you have any question, if you have any confusion, you can ask. अच्छा, ये जो snobbish और हमने जो शुरू में किए थे ना आपके वर्ड्स, snobbish and arrogant and vain, ये एक दो मैंने कोई और बुक्स भी देखी हैं तो उसमें थोड़ा आगे पीछे ये हुए हैं। किसी ने ना फर्स्ट वाले को कहा हुआ है कि arrogant है और किसी ने सेकंड वाले से कहा है snobbish है, तो इसमें बहुत स्लाइट फ़र्क है मीनिंग का। दे आर कॉल्ड रिलेटेड वर्ड, वर्ड फील्ड एक ही है इनकी, स्नॉबिशनेस और एरोगेंस की और वैनिटी की। सो इट्स हार्डली लाइक अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। लेकिन जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है दैट इज़ अ वैलिड डिफरेंस। वैनिटी इज़ रिलेटेड टू योर फिजिकल अपीयरेंस, arrogance has a bit of rudeness with it, and snobbishness is more like a mind thing, कि आपका दिमाग ऐसे काम कर रहा होता है कि यानी यू आर द बेस्ट, और वो आपके बॉडी लैंग्वेज में वो चीज़ आ जाती है कि आप किसी से बात नहीं करना चाह रहे या आप जवाब नहीं दे रहे आगे से, बट यू कैन बी नॉट रूड एंड स्टिल बी snobbish. But arrogance comes with rudeness also, that whenever you talk in a very bad manner, yeah, you say things which are very derogatory or insulting to other people, so the rudeness becomes part of arrogance, so keep that in mind. Okay, with that we come to the end of the exercises. If you have any questions, please do ask.